اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری ضلع کا یہ تاریخی اور بہت ہی قدیمی قصبہ کھیری ہے۔ قصبہ کھیری لکھیم پور کھیری کا جو ہیڈ کوارٹر ہے لکھیم پور، اس ہیڈ کوارٹر سے بالکل متصل ہے، 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کھیری ٹاؤن بہت ہی ایتہاسک قصبہ ہے، تاریخی قصبہ ہے، ہسٹوریکل پلیس ہے یہ، اور اس قصبے میں درجنوں کی تعداد میں اولیاء کرام آرام فرما ہیں۔ اس وقت جس ہم آستانے پر موجود ہیں، یہ مقدس اور مبارک آستانہ حضرت سید جلال الدین المعروف سید خرد پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج عرس کی تقریبات ہو رہی ہیں۔ یہ 2 روزہ عرس ہوتا ہے۔ کل یعنی جمعرات کو اس کا آغاز ہوا تھا، اور آج 12 شوال المکرم کو جس کا دوسرا دن ہے۔
حضرت سید جلال الدین المعروف خرد پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وصال فرمائے ہوئے اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے کم و بیش 550 سال ہو چکے ہیں۔ آپ کی تاریخ، آپ کا جو اتہاس ہے، کب تشریف لائے، کہاں سے تشریف لائے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو ابھی بتائیں گے، لیکن اس سے پیشتر ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آج کی جو تقریبات تھیں، آج کا جو یہ آخری دن ہے، دوسرا دن قل شریف آج ہوا ہے، ابھی بالکل تھوڑی دیر پہلے، چند منٹ پہلے اس سے پیشتر میلاد شریف کی محفل منعقد کی گئی، جس میں علماء کرام نے اولیاء کرام کے حوالے سے تقریریں کی، اس کے علاوہ نعت و منقبت کے نذرانے بھی پیش کیے گئے۔ جب ہمارا کوئی پڑوسی ناراض ہو جائے گا تو ہم اپنے پڑوسی کے گھر میں جائیں گے، لیکن جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم میرے محبوب کے در پر چلے جاؤ۔ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر، جو وہاں سے ہو یہی، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کے در پر حاضر ہو جاؤ۔ اب سارے لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، موقع ملتا ہے، لیکن جن لوگوں کو موقع نہیں ملتا ہے وہ آل رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔
کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں گربے بہا دیے ہیں سرکار یہ دیوانگی ہے. ماشاء اللہ محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. سرکار کا پسینہ سرکار کا پسینہ سرکار کا پسینہ سرکار کا پسینہ آنے دو یاد وہ اب وہ تمہاری جانب آنے دو یاد بانا اب تو تمہاری جانب آنے دو یاد بانا اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں سرکار کا پسینہ سرکار کا پسینہ سرکار کا پسینہ سرکار کا پسینہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جسم تیا گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں سرکار کا پسینہ سرکار کا پسینہ سرکار کا پسینہ سرکار کا پسینہ. یہاں اس وقت قصبہ کھیری یا لکھیم پور کھیری ضلع کے ہی نہیں بلکہ ایک کثیر تعداد ایسے حضرات کی ہے ایسے زائرین کی ہے جو دور دراز سے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں اولیاء اکرام کی محبت میں اور خاص طور سے حضرت سید خرد پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان کے محبت میں اور ان کی عقیدت میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں. میں کچھ اور آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پیشتر میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر وکیل صاحب کھڑے رہیں آپ سے بھی کچھ بات کریں گے. ہمارے سید سلمان رضوی صاحب موجود ہیں جن کو اولیاء کرام کی تاریخ کے بارے میں اچھی معلومات ہے اور خاص طور سے جو لکھیم پور کھیری ضلع کے جو اولیاء کرام ہیں ان کے بارے میں خاصی انہیں معلومات ہے. سب سے پہلے میں سلمان صاحب سے ہی جاننا چاہوں گا کہ حضرت سید جلال الدین المعروف سید خرد پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ان کی تاریخ کے بارے میں بتائیں. کہاں سے تشریف لائے, کب تشریف لائے اور کیا مقصد تھا, کیا اغراض و مقاصد تھے تشریف لانے کے. پہلے تو آپ پوری تاریخ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مختصر وقت میں بتائیں لیکن مکمل جامع بتائیں. جی, صاحب آستانہ حضرت سید جلال الدین المعروف سید خرد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈائریکٹ اس قصبے میں نہیں آئے تھے اپنے وطن سے,
बल्कि आपका आबाई वतन ज़िला बाराबंकी में कस्बा है जैदपुर। आपका आबाई वतन जैदपुर है। आप जैदपुर से हुसूल तालीम की गरज से सीतापुर ज़िले के कस्बा खैराबाद अवध में तुम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह खैराबादी, उनके हाथ पर आप बैत हुए और उन्हीं के की खिदमत में आपने काफ़ी अरसा गुजारा। मुर्शिद बड़े मखदूम साहब ने आपको ज़ाहिरी व बातनी उलूम से मुज़य्यन फरमा कर हुक्म दिया कि खीरी चले जाओ, वहीं पर मुकीम हो जाओ, वहीं अपना मस्कन बनाओ और जो लोग दीन का सबक हासिल करना चाहें उनको सबक दीन का पढ़ाओ। जिस वक्त आप तशरीफ़ अपने मुर्शिद के हुक्म से यहाँ लाए हैं उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 31 बरस की थी। 31 साल की उम्र में आप यहाँ पर आए। बड़े मखदूम साहब के आप खलीफा हैं और आपके दादा पीर का नाम है शामीना शाह लखनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह और आपके परदादा पीर हैं मखदूम शेख सारंग रहमतुल्लाह ताला अलैह और परदादा के ऊपर एक दादा का जो पीर आपके हैं वो है हज़रत राजू क़िताल हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह। फिर उसके बाद 5 या 6 वास्तों से आप गरीब नवाज तक आपका सिलसिला पहुँचता है। आपके करीब में जो आराम फरमा हैं आपके साहबजादे सैयद अली असगर रहमतुल्लाह ताला अलैह और आपका विसाल 970 या 71 में, जैसा कि यहाँ पर दिया है 970, हमने जो तारीख़ पढ़ी 971 उसमें दिया हुआ है कि आपका विसाल हुआ और आपने कहा था कि शाह विलायत मखदूम वजीहुद्दीन हमारी जनाजे की नमाज़ पढ़ाएंगे। तो आपकी वसीयत के मुताबिक यहाँ मोहल्ला शेख सराय में सड़क के किनारे आस्ताना है शाह विलायत का मखदूम वजीहुद्दीन का, तो उन्होंने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई थी और आप बहुत बड़ा मदरसा भी चलाते थे, बहुत लोग आपसे उलूम हासिल किया करते थे। आप चिश्तिया सिलसिले के साहिब समा बुज़ुर्ग थे। आपसे बेपनाह करामात का ज़ुहूर हुआ करता था और जो भी इनके यहाँ आता था वो खाली नहीं जाता था और आपके पास बहुत बड़ी रियासत भी थी और आपके जो जिसको हिंदी में वंशज कहते हैं, जो आपकी पुश्तें चली, तो ये ख़ासियत थी कि आपके जो बेटे पोते पर पोते जो भी होते रहे तो उस वक्त में जो भी बादशाह होता था उसकी तरफ से मुफ्ती मुकर्रम का लक़ब दिया जाता था, एक ओहदा होता था मुफ्ती मुकर्रम। तो आपकी औलादों की ये ख़ासियत रही कि आपके बेटे के नाम के पहले मुफ्ती अली असगर रहमतुल्लाह ताला अलैह और मैं नोट करके लाया हूँ कुछ, आपका जो सिलसिला है सब में मुफ्ती लगा हुआ रहता था। फिर हाँ, और फिर जो सैयद अली असगर के साहबजादे थे उनका नाम था, वो पोते थे मखदूम खुर्द साहब के, सैयद मोहम्मद माह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी मज़ार यही खीरी में। नहीं वो उनका मज़ार वो दूसरे हैं। सैयद मोहम्मद माह के बेटे थे, ये थे सैयद मुफ्ती सैयद मोहम्मद माह और उनके फर्जंद थे सैयद मुफ्ती सैयद कहते थे उनको, और मुफ्ती सैयद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे थे मुफ्ती सैयद सलामत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके साहबजादे थे मुफ्ती वज़ीर अली रहमतुल्लाह ताला अलैह और मुफ्ती वज़ीर अली के बेटे का नाम था मुफ्ती अली हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह और मुफ्ती अली हुसैन के बेटे थे मुफ्ती हैदर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह। मुफ्ती हैदर हुसैन हमने तो नहीं देखा, ये आप यहाँ के आस्थाने के 45 साल से हमारे चचा हनीफ कुरैशी साहब खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि साहिब आस्थाना ने आपको चुन लिया खिदमत के लिए। आप और अब हमारे भाई हारून चिश्ती साहब भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बड़ी इनके ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं लोगों के ताउन से, चाहने वालों के ताउन से और साहिब मज़ार की मर्ज़ी से आप यहाँ पर, आपने मुफ्ती हैदर हुसैन को देखा भी होगा हमारे आपके वालिद के दौर में, और फिर मुफ्ती हैदर हुसैन साहिब आस्थाना के 9वीं पुश्त में थे और फिर मुफ्ती हैदर हुसैन के कोई बेटे नहीं थे, इसलिए वो सिलसिला फिर वहाँ पर ख़त्म हो गया। तो कहने का मतलब आप मदरसा चलाते थे, बहुत बड़ा लंगर चलता था और बहुत बड़े आप ज़मींदार थे। जो सराय सकूनत वगैरह है तो काफ़ी सराय खोली थी आपने, जिसको धर्मशाला कहते हैं, सराय कुएँ बागात ये सब इनके उसमें थे इलाके में। और आप ये समझ, और आपके ख़ानदान की एक बेटी
छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के ख़ानदान में भी मंसूब हुई थी। सलमान साहब आपसे बात जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर एडवोकेट मोहम्मद सईद खान साहब भी हैं। सईद साहब कवरेज किया करते हैं इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं। सईद साहब, क्या जो औलिया कराम के सूफ़ी संतों के जो आस्थाने हैं, एक क्या मैसेज आवाम को मिलता है इन आस्थानों से? देखिए, इन आस्थानों से प्यार, मोहब्बत, एकता का पैगाम दिया जाता है। यहाँ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म जात के लोग आते हैं, अपनी मुराद मानते हैं और फैज़याब होते हैं। आप शायद कव्वाल हैं, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? खैराबाद शरीफ। खैराबाद शरीफ से। यहाँ हर साल आना होता है आपका? जी जी। क्या आपने तो बहुत से औलिया कराम के आस्थानों पर हाज़िरी दी होगी और कलाम पेश किया होगा। जब आप लोग कलाम पेश करते हैं, सूफियाना कलाम या नातिया कलाम वगैरह जब पेश करते हैं, क्या कैफियत होती हैं? औलिया कराम के मज़ारात सामने होते हैं, एक तसव्वुर आपका होता है, क्या कैफियत उस वक्त होती हैं? बहुत अच्छे कैफियत होती है। अच्छा, हाँ, यहाँ कब से आ रहे हैं? यहाँ कई साल से आ रहे हैं। कई साल से आ रहे हैं। फरीद साहब भी माशाल्लाह कव्वाल ही हैं आप जी। खैराबाद शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं। औलिया कराम के आस्थानों के हवाले से कोई एक शेर अगर आप सुना दें तो इनायत होगी। अच्छा, शेर जी, एक शेर सुना दें। तेरे दर से मिलता है बेतलब, मुझे क्या दुआओं से वास्ता। तेरे दर से मिलता है बेतलब, मुझे क्या दुआओं से वास्ता। जहाँ मुंतज़िर हुई इनायतें, वहाँ सवाल की क्या बात। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस आस्थाने की जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, कमो बेश निस्फ सदी हुई जा रही है, 40-45 साल का अरसा हुआ जा रहा है। मोहम्मद हनीफ़ साहब, मोहम्मद हनीफ़ साहब की बहुत खिदमत हैं और सही सलमान साहब ने अभी फरमाया कि ये खिदमत ये क्या अंजाम दे रहे हैं, बल्कि खिदमत इनसे ली जा रही हैं। और मोहम्मद हनीफ़ साहब के साथ साथ में इनके साहबजादे अजीज़म हारून चिश्ती साहब भी, उनकी भी बहुत खिदमत है और बल्कि ज़्यादातर वही अब खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इनकी निगरानी रहती है। कितने साल हो गए होंगे? 45वां साल चल रहा है। अच्छा जी। उर्स जी, उर्स के बारे में बताइए कि 2 रोज़ा 2 दिन का उर्स होता है, आज दूसरा दिन है, तो उर्स में क्या क्या होता है? ये महफिल समा होती है और गागर चादर होती है जी, और मिलाद शरीफ होती है, लंगर होता है, देसी परदेसी आते हैं, सब तकसीम करते हैं जी जी और बस्ती के भी तकसीम करते हैं। जी जी। सलमान साहब, आखिरी आपसे एक और सवाल कर लूँ, चूँकि महफिल समा का भी इंतज़ार हो रहा है कि हम वीडियो ख़त्म करें। औलिया कराम जैसा कि ज़ाहिरी हयात मुबारका में भी उनके तसर्रुफ़ात होते हैं, वो खिदमत खल्क और आवाम की खिदमत, खल्क की जो है वो खिदमत किया करते हैं, मदद किया करते हैं, और इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ़ ले जाने के बाद बादे विसाल भी उनके तसर्रुफ़ात जारी रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने बजा फरमाया। अल्लाह के जो ये वली हैं, इन जब तक ये ज़मीन पे रहते हैं तब भी इनका फैज़ान जारी रहता है, और जब ज़मीन में होते हैं तब भी इनके फैज़ से लोग मालामाल होते रहते हैं। और इस आस्थाने पर भी आपका फैज़ जब आप बज़ाहिर मौजूद थे तब भी जारी था, फैज़ का दरिया रवा था, और आज भी बिला किसी तफरीक के फैज़ का दरिया यहाँ से रवा है। जी, बहुत शुक्रिया। तो अभी हमने सैयद सलमान रिजवी साहब से भी बात की, सीनियर एडवोकेट मोहम्मद सईद खान साहब से भी बात की, इस आस्थाने के जो खादिम ख़ास हैं उनसे भी हमने बात की। आप देखिए कि चारों तरफ अक़ीदतमंदों का एक हजूम है। इस वक्त हाजी मोहम्मद अफजल गौरी साहब इस नगर पंचायत खीरी की चेयरपर्सन रही हैं, उस्मानिया खातून उनके शौहर हैं। हाजी साहब, औलिया कराम के आस्थानों से जो एक मैसेज आवाम को जाता है, क्या कहना चाहेंगे औलिया कराम के आस्थानों पर हाज़िरी के हवाले से? माशाल्लाह, यहाँ पे आस्थाने पे तो हाज़िरी, आप बिल्कुल करीब में ही हैं। जी हाँ, रोज़ आस्थाने पे हाज़िरी होनी चाहिए और रोज़ आते हैं इंशाल्लाह। और बहुत अच्छी बात है, ये उर्स शरीफ हो रहा है, अल्लाह ताला कामयाब करे, हमेशा इस तरह से उर्स शरीफ होते रहें और तमाम औलिया कराम के मज़ारों पे उर्स शरीफ होते रहें इस तरह से। जी जी। तो आप देख रहे हैं कि बहुत से अक़ीदतमंद यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, बाहर से भी ज़ायरीन आए हुए हैं, और इनमें सभी तबका, सभी जो वर्ग है, सभी वर्गों के ज़ायरीन हैं। ख़वातीन, हमारी माँ बहनें भी, बेटियाँ भी यहाँ पर आई हुई हैं, आप देख रहे हैं। और महफिल समा बिल्कुल होने जा रही है।
इस वक्त आस्ताना आलिया के जो ख़ास खादिम ख़ास हैं हारून चिश्ती साहब, वो भी तशरीफ़ फरमाए। भैया उर्स की तकरीबात के हवाले से बताइए, आज दूसरा दिन यानी आखिरी दिन है, तो कल जो प्रोग्राम हुए हैं, तकरीबात हुई हैं, और आज इसके बारे में बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल आप हज़रत मखदूम जलालुद्दीन अलमारूफ सैयद खुर्रम रहमतुल्लाह अलैह का कल से उर्स 11 शव्वाल से शुरू हुआ। कल बाद नमाज इशा, गागर चादर, उसके बाद गुलपोशी, फिर महफिल शमा हुई थी। और आज सुबह फजर के बाद कुरान खानी, उसके बाद मिलाद शरीफ, अब महफिल शमा होगी, उसके बाद कुल शरीफ होगा। जी, तो ये शव्वाल के महीने में उर्स होता है, लेकिन जो तारीख़ विसाल दर्ज है वो रबीउल अव्वल शरीफ की है, तो ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। असल में पहले जो ये उर्स का आगाज़ किया गया 1987 से, जब हमारे वालिद ने जो है आगाज़ किया था, तो जब तारीख़ विसाल की आपकी पता नहीं थी, उसके बाद जब पता चली खैराबाद बड़े मखदूम साहब के वहाँ से, तो वो 11 रबी अव्वल को जो है आपका जो है कुल शरीफ किया जाता है, लेकिन उर्स यही तारीख में शव्वाल में होता है। कारी साहब भी तशरीफ़ फरमाए। औलिया इकराम के तसर्रुफ़ात के हवाले से ज़ाहिरी हयात मुबारका में तो वो उनके तसर्रुफ़ात का सिलसिला जारी ही रहता है, लेकिन जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, पर्दा कर जाते हैं, विसाल हो जाता है, तो तसर्रुफ़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाता है तसर्रुफ़ात के हवाले से। और ये जो औलिया इकराम के आस्ताने हैं, इनसे जो एक मैसेज जाता है, इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर कुछ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए सर, जिस तरीके से हयात ज़िंदगी में औलिया अल्लाह का फैज़ जारी होता है, इसी तरीके से पर्दा करने के बाद में पूरी तरीके से फैज़ जारी होता है। लोग फैज़याब रहते हैं, खूब बरकतें और रहमतें लुटते हैं और फैज़याब होते हैं। उनके दर पर आने से बड़े बड़े बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, और इन लोगों की आस्थाने पर हाज़िरी देकर बड़े जो है बीमारों को शिफा मिलती है। और उसके अलावा जो भी लोग चाहे तमन्ना मुरादें मांगते हैं, उनकी पूरी हुआ करती हैं। ये चला आ रहा है। उसके अलावा ये है कि जिस तरीके से लोग अपनी मुरादें तमन्ना लेकर आते हैं, तो इन औलिया अल्लाह की फैज़ व बरक़ात से उनको हासिल हुआ करती है। जी, बहुत शुक्रिया कारी साहब। तो नाज़रीन, हमने आज आपको उर्स के दूसरी शब की जो तकरीबात हैं, या कह लीजिए कि आखिरी जो शब है उर्स की, इसकी तकरीबात के हवाले से हमने बात की। आपको बहुत कुछ हमने आपको दिखाया भी, और सैयद जलालुद्दीन अलमारूफ सैयद खुर्द पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुक़द्दस ज़िंदगी, उनकी हयात मुबारका और उनकी जो दीनी खिदमात हैं, उनकी दीनी खिदमात के हवाले से भी हमने आपको बहुत कुछ बताया। अक़ीदतमंदों से भी हमने बात की, और ये जो आस्ताने हैं औलिया कराम के आस्ताने, यकीनन ये जो नफ़रतों का दौर है, इस दौर में भी इन आस्तानों से मोहब्बत ही आम होती है। और बाद सियासी लीडरान ये कहा करते हैं कि नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलना है, तो मैं ये कहता हूँ कि नफ़रतों के शहर में ये मोहब्बतों की बाज़ारें हैं, और इन बाज़ारों से, इन मकामात से सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत ही आम होती है। ये ज़ाहिरी ज़िंदगी में भी मोहब्बत ही बांटते हैं, और जब इस दुनिया से बज़ाहिर पर्दा कर जाते हैं, तब भी इनका जो पैगाम है मोहब्बत का, वो आम रहता है। इनके तसर्रुफ़ात जारी रहते हैं, और इन आस्थानों पर जो लोग आते हैं अक़ीदतमंदी के साथ, उन तमाम अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन को फ़ैज़ हासिल होता है। आपसे गुजारिश है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी बहुत ही मोहब्बत से गुजारिश है कि आप अपने कमेंट ज़रूर दिया करें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट दें, और खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफ़रान अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।